Good morning, students. Myself, B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now, class 10, chapter number 3. Chapter number 1 and 2 we have to already completed. Now, today we discuss about chapter number 3. The name of this chapter is linear equations in two variables. Now, अब तक आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप सोल्व करते हुए आए। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। अगर वन वेरिएबल है तो सिंगल इक्वेशन सफिशिएंट, और अगर टू वेरिएबल्स हैं तो दे आर टू इक्वेशंस आर सफिशिएंट, एंड थ्री वेरिएबल्स हैं तो दे आर थ्री इक्वेशंस आर सफिशिएंट। यहाँ हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट थिंग, what is the linear equation two variable? Now, standard form of linear equation of two variables is given: ax plus by plus c is equal to 0. Here ax plus by plus c equal to 0. X and y are two variables where a, b, c are the constant. A is the constant of coefficient of x, b is the coefficient of y, and c is the constant term. It is the standard form of linear equation in two variables. Now, how we calculate the values for x and y? In this chapter, there are many solutions, many methods of find the linear equation values for x and y. Now, first, this situation, how we find out, we perform in the word problem. In word problem, the exercise number 3.1, they are given the situation only. There are some word problems are given and आपसे पूछा जाता है perform write the linear equation in two variables the given the situation. So how we can perform the word problems? For example, suppose the first question is given. The given Aftab tells his daughter the 7 years ago, I was 7 times as old as you were then also. And also, there also from now, I shall be 3 times as old as you. Now, this situation represent right in the form of two variables. So, how we can write? Now, there are two persons are given. One is Aftab, and second his daughter. इट इज वेरी सिंपल। जितने पर्सन्स हैं तो उन टू पर्सन्स को पहले आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे सिंपल एक मेथड आपको यूज बता रहा हूँ। लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज x years एंड एज ऑफ हिज डॉटर बी y years old। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल आफ्ताब एंड डॉटर, राइट द आफ्ताब बी x एंड डॉटर बी y। सपोज इट इज द प्रेजेंट एज. And now situation is given 7 years ago, means before 7 years. Write the definition before 7 years ago. ये आपको given है, तो आपको क्या करना है? First we find out that before 7 years, what is the age of Aftab? माइनस करना है, x minus 7 years and y minus 7. Situation is, what is the given? This Aftab is the 3 times old. 3 times? No, sorry, 7 times. अगर ये 7 times है तो जो लेस पार्ट है उसी में ऐड करना है, उसी में आपको मल्टीप्लाई करना है। This number is the 7 times of this one. तो आपको क्या करना है, इसको 7 टाइम्स कर लीजिए,
तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. इट इज द फर्स्ट सिचुएशन. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. आप लिख सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस इज द 49. y को इधर, x और y को आप क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स राइट इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट राइट इन द राइट हैंड साइड. सो x माइनस 7y एंड इज इक्वल टू माइनस 49 एंड प्लस 7. 7 को उधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस 7 एंड इट इज द माइनस 42. इट इज द फर्स्ट पार्ट. इट इज द फर्स्ट इक्वेशन. इक्वेशंस को आप नंबर दे सकते हैं अपन पहचान के लिए. नाउ सेकंड सिचुएशन, व्हाट इज द 7 here? नाउ सेकंड सिचुएशन इज गिवन नेक्स्ट 3 years from now. That means this time after 3 years. तो पहले एक काम करते हैं, 3 years, after 3 years, what is the age of after? X plus 3 and daughter is also y plus 3. years दोनों में ऐड होंगे. अब 7 years, after 7 years, what is the situation? Now situation is given 3 years from now I shall be 3 times as old as you. इस बार after 3 years ये नंबर वापस से 3 times है, तो इस बार वापस से डॉटर को 3 times करेंगे और इक्वल. सॉल्व इट. x plus 3 is equal to 3y and plus 9. y को उधर शिफ्ट करो. x minus 3y is equal to 3 को उधर शिफ्ट करेंगे 9 minus 3 and 9 minus 3 is equal to 6. So it is the second situation. इस बार अपन को सॉल्व नहीं करना है, जस्ट ओनली राइट इन दिस सिचुएशन इन एल्जेब्रिक फॉर्म एंड ग्राफिकली. अगर आपको ग्राफिकली सिंपली अगर आपको नोट करना है तो सिंपली ग्राफिकल में हम क्या करते हैं, सिंपल राइट दिस, फॉर्म द टेबल लाइक दिस वन and find out the minimum 3 numbers. Write here x and write here y. आपको क्या करना है, x और y जो है वो प्रेजेंट एज है और यहाँ पे जो नंबर्स फाइंड आउट करना है x और y में जो सिचुएशन आपको गिवन है. मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ. पुट फर्स्ट y इक्वल टू 0. अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ, व्हाट इज द x? x इज इक्वल टू माइनस 42. And next situation, put x equal to 0. So x equal to 0, तो y equal to आपको क्या मिलेगा? minus 2 minus cancel. And 42 upon 7. 42 upon 7 is 6. So this time is 0 and is 6. दो वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली. एक वैल्यू आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, जो नंबर इजीली कैंसिल हो जाए. अगर आप चाहें तो y इज इक्वल टू, यू टेक दिस सपोज 2 14 14 को आप उधर शिफ्ट करिए प्लस y इज इक्वल टू 14. सो दिस 7 इंटू 2 आपने पुट किया, 7 इंटू 2 14, देन 14 आपने उधर शिफ्ट किया माइनस 42. दिस द प्लस हो जाएगा और ये प्लस नंबर माइनस 42 अपॉन माइनस 14. 12 minus 4 is the 8 and 3 minus 1 is the 2. 1. So it is the 18. So minus 18 and 2. ये algebraic situation है. इसको आप ग्राफिकल में इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये मैं मेथड आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये अपन आगे चलकर भी अपन इसको डिस्कस करेंगे. तो ये एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट एक्सरसाइज को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सॉरी, एक्सरसाइज नंबर दिस, इन दिस एक्सरसाइज देयर आर 3 क्वेश्चंस आर गिवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड. 3 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी, फर्स्ट क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस. नाउ नेक्स्ट वी फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर x and y using the sum method. First method is the algebraical method and second method is the graphical method.
तो यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी, algebraic method to find the values of x and y by using algebraic method. यहाँ हम 3 methods यूज करेंगे. First is by substitution. And second is by eliminating. And third is by cross multiplication. By cross multiplication and by eliminating and by substitution. There are 3 methods is called for algebraic method. First method is by substitution. आज अपन डिस्कस करते हैं by substitution method. आराम से इसको सॉल्व करना है. चैप्टर थोड़ा सा लेंथी भी है, तो एक बार, और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए क्योंकि आगे चल के इसको यूज़ भी करना है. इनमें से तीनों मेथड में से आपको एक ही मेथड यूज़ करना है. जो मेथड आपको इजी लगे वही मेथड आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, जब तक एग्जाम में और पर्टिकुलर मेथड का नाम न दिया जाए. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट वी यूज द बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. Suppose simple one equation is given x plus y equal to 7 and x minus y is equal to 3. They are first equation and it is the second equation. They are first and second. ये नंबर अपन दे रहे हैं इक्वेशन को नेम देने के लिए ताकि इक्वेशंस को आप पहचान पाए. Equation number 1 and 2 are given and just find out the values for x and y using the by substitution method. This one. How can we find out? You take the any one equation and find the values for one variable in other variables. It's very simple. By one. लंबी चौड़ी आपको लैंग्वेज यूज नहीं करनी. Simple you write by one. You can use any, find out any variable. Suppose we take the y. Y is equal to 7 minus 8 and take the equation number 3. मैंने कैलकुलेट किया y is equal to 7 minus x. And this value put in for second. आपने फर्स्ट से फाइंड आउट किया तो फर्स्ट में पुट नहीं करना है, अदरवाइज वो सेटिस्फाई हो जाएगा. नाउ पुट इन सेकंड. Put in second. Now x minus and y is 7 minus x and is equal to 3. So x minus 7 minus minus plus x is equal to x plus x is 2x and this minus 7 shift on right hand side. So 3 plus 7. 3 plus 7 is equal to 10. So what is x? X is equal to 10 upon 2 and 10 upon 2 equal to 5. So x equal to 5. It is the first answer. It's very simple. Similarly, find the other variable using this method. Same. This put x equal to 5 in equation number 3. Put in 3rd. What is 3rd? Y is equal to 7 minus x. X is already find out 5. So 7 minus 5. What is 7 minus 5? 7 minus 5 is equal to 2. So y is equal to 2. So x is 5 and y is 2. There are two solutions, x और y. It is the answer. ये वो वैल्यूज हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे. आप चाहें तो पुट करके इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखें, अभी हम एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको चेक करें. मैं एक क्वेश्चन और आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिस पे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ और उस मेथड को ध्यान से देखें और
उसके बेसिस पे वापस से आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज अपन ने क्या किया, the linear equation in two variables and find the solutions for linear equation in two variables by using by substitution method. Now use the next method is mine. 3x plus 2y is equal to 5 and x minus 4y is equal to 7. It is the first equation and it is the second equation. Okay, now find the any one variable, any from any one equation. यहाँ मुझे x easy लग रहा है because coefficient of x is 1. तो मैं क्या कर रहा हूँ, first find out from equation number second. From second equation we find the value of x. x is equal to 7 plus 4y. यहाँ पे मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी, जो आपको इक्वेशन इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से भी आप x और y को कैलकुलेट कर सकते हैं इन with denominator 2 and with denominator 3. Okay, and solve by using the method of LCM. Now first we solve, but x is the easy because coefficient is 1 is easy. जो coefficient आपको easy लगे उसको आप कैलकुलेट कर दीजिए. Now equation number 3. Now this value of x put in, आपने x को किससे कैलकुलेट फाइंड आउट किया, 2 में, तो आपको 1 में पुट करना होगा. Put in 1 3 x is equal to 7 plus 4y and plus this 2y as it is and is equal to 5 as it is. अब ये सिंगल इक्वेशन बन गई, सिंगल वेरिएबल y. अब यहाँ से y को कैलकुलेट कर दिए. 7 into 3 21 plus 4 into 3 12 and plus 2y and equal to 5. This plus this 14y and equal to 5 minus 21. So y is equal to this 21 and this 5. अब इसमें से माइनस कर सकते हैं, -16 and upon this is 14. इस 14 को भी यहाँ पे शिफ्ट करो, इसको जितना इजी कर सकते हैं आप इजी कर सकते हैं कैंसिल करके. माइनस एज इट इज 16 and 14 अगर आप 2 की टेबल से कट करते हैं तो ये नंबर 7 टाइम्स और दिस नंबर इज 8 टाइम्स. सो 8/7. 2 की टेबल से आप ये कैंसिल कर रहे हैं, 2 7 जा and 2 8 जा. सो फाइनल आंसर इज 8/7. दिस इज द टेक द इक्वेशन नंबर 4. ये आपने y की वैल्यू को कैलकुलेट किया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 7 minus 8/7. Okay student, now next this value from 4 put in. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, देखो आप ऑलरेडी x को आप फाइंड आउट कर चुके हो इन फॉर्म ऑफ y. जब x ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो इक्वेशन नंबर 3, तो आपको ये वैल्यू जो है वो थर्ड इक्वेशन में ही आपको पुट करनी है ताकि और इजी हो जाए. 2 और 1 में पुट करोगे तो वापस से आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो यहाँ पर इजी रहेगा कि x इज इक्वल टू पुट इन थर्ड. सो x इज इक्वल टू, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ रहा है 7 plus 4 into y. What is y? y is minus 8/7. Minus 8/7 is equal to. Now simplify. Take the 7 is LCM. अगर ये नंबर कैंसिल होते हैं इसको आप कैंसिल कर सकते हो. Now 7 and this 7 into 7 49 and plus minus minus and 8 into 4. 8 into 4 is 32 and this minus this 9 minus 2 is 7 and 4 minus 3 is the 1 and upon 7. नंबर दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, तो यही आपका आंसर है. So therefore in right in last x is 17/7 and y is minus 8/7 is the answer, final answer. It is the values for x and y. एक चीज हमेशा याद रखो, in two variable equations आप हमेशा याद रखें ना कि x और y की जो भी वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हो उसमें डिनोमिनेटर जो भी आप कैलकुलेट करते हो वो हमेशा सेम होंगे. तो देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर 7 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही आता है. आप कोई भी इक्वेशन कोई भी एग्जांपल आप लेके देख लीजिए, 99.9%
their denominators are same in two variable equation. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है कि 0.1% कुछ अलग हो, पर जहाँ तक अभी तक मैंने सॉल्व किए जितने भी क्वेश्चंस, उसमें डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहे। आज हमने केवल एक तो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को परफॉर्म किया है इन फॉर्म ऑफ ग्राफिकली, इन फॉर्म ऑफ एलजेब्रा। और ग्राफिकली सॉल्यूशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्राफ लेकर। और अभी अपन ने जो एक्चुअल जो मेथड यूज़ किया है फॉर फाइंड द वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, वो मेथड था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए कि दोनों वैल्यू इक्वेशंस में से हम किसी एक वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं और उस वैल्यूज को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इसीलिए उसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट कल हम यूज़ करेंगे बाय एलिमिनेटिंग मेथड। अभी मैं इस क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ कि अब जब तक आप इसको प्रैक्टिस करो सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, नाउ गुड डे।